Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Malika Sherawat has called Narendra Modi India's most eligible bachelor. Is Salman Khan miffed with Katrina Kaif? Is Sonam Kapoor more fashionable than Priyanka Chopra and Deepika Padukone? Actress Malika Sherawat, who calls Gujarat Chief Minister Narendra Modi the most eligible bachelor in the country, says she will do anything for him if he will come on her show The Bachelorette India, Mere Khayalon Ki Malika. The Bachelorette India will go on air October 7th on Live OK and will be hosted by actor Rohit Roy. The actress is set to find her soulmate through the show, in which about 30 contestants from all walks of life will try to woo her. भगवान मल्लिका शेरावत जैसी हो, मल्लिका शेरावत जैसी। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके साथ। When asked what she will do for Modi if he comes on her show, she said that whatever he will say, she will do happily. For her, the most eligible bachelor in the country is Narendra Modi. And what does she think about Congress Vice President Rahul Gandhi? Malika very firmly says that she is not interested in him. Salman Khan has never spoken openly about his ex-girlfriends, be it Sangeeta Bijlani, Somi Ali or Aishwarya Rai Bachchan. No matter how bitterly his relationship ended, he maintained a dignified silence once they were over. But with Katrina Kaif, things aren't the same. She may still hold a special place in his family, but we don't know if that's the same with the Khan himself. Salman has been taking digs at her and ignoring her too often. A while back at an award function, when Katrina saw Salman's vanity van parked, she went to greet him, but apparently he closed the door of his van to avoid meeting her. Recently on Bigg Boss 7, he asked Ellie Avram to say few dialogues from her debut film Mickey Virus. As soon as Ellie said it, he quickly snapped back saying it reminds him of Katrina. Now we know Salman's sense of humor is wacky, but our guess is as good as yours about what he actually intended. Maybe he's upset with Katrina because of a certain Ranbir Kapoor. Salman was cordial to him all along. He even made a guest appearance in their film Ajab Prem Ki Gazab Kahani. Fashionista Sonam Kapoor always impresses us with her unique dressing style. Well, so it wasn't surprising that the glam diva has been chosen to be a part of the list of the 500 people who build the fashion industry. This is the first time any Indian actor has made it to the list. Every year, Business of Fashion draws a list called BOF 500, which lists the 500 most stylish people. Right from designers to entrepreneurs to actors, they all have made it to the list. BOF 500 consists of individuals hailing from 27 countries representing 50 nationalities. Well, we'd like to congratulate the super stylish babe on her newest achievement, and we hope that she continues to dazzle us with her ravishing appearances. Of late, she has stepped out in a not her usual stylish avatar, but we are sure it's just a phase and she will be back to her gorgeous, usual self in no time. Hi, this is Vivek Oberoi. Wishing all the viewers of Bollywood Masala all the very best.
Actually, we finished the film yesterday, and more than me, my team is very happy because when I am doing, I can't judge, but I used to ask for the sound engineer, editor, and they are all very happy. They are told, sir, ekdam full on, sir. The film, Gandiva. Everybody, I like Matumari song. No, you can be honest. No, really, I love it But to which see. is your number one favorite? I love Matumari. Before that. Because you are going to say Sarika Falsa, what to do? Promotion, na, every song has to be done. No, basically I love Matumari. When the visual comes, you will know it why. I love the way we shot. Sari Ke Falsa, my all-time favorite song. मेरे पास इन लोगों ने सिर्फ कद्दू कटेगा ऑप्शन छोड़ा है। गंदी बात तूने ले लिया, मत मारी सर ने ले लिया, साड़ी का फॉल इसने ले लिया, और ये अगर अलार्म बंद हो जाए तो। ठीक है, so all, we're here to present the launch of India's first custom comic book for the film R. Rajkumar. ये innovation पहले time की गई है. It's the first time for any Bollywood movie that we've got the fans to interact with the story of the movie and send their stories to us. And we've chosen the winners from thousands of entries which we've received online. And the 3 lucky winners are here right now. Unveiling of the comics. So can I have the team to please do the honors? Ladies and gentlemen. A big round of applause for India's first custom comic book for the film R. Rajkumar. All right, I'd like to invite the winners on stage. Meet. We have Shraddha, and I cannot forget this name. It's a very unique name. Urvish, please come up on stage. Ladies and gentlemen, please welcome them with a big round of applause. इन्होंने ही इस कॉमिक को स्क्रिप्ट किया है, डिजाइन किया है, और वो हमारे साथ है इस वक्त. Please, come quick. Don't. शायद स्पेशल रिक्वेस्ट. आइए. Can you please have a quick photo op? Very cool. मेरे भाई actually बहुत कॉमिक्स कलेक्ट करते थे. एंड मैं उनके कलेक्शन में जब भी झांकती थी तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी. सो नाउ टुडे आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव माय ओन कॉमिक बुक एंड आई एम इन इट. सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. बहुत अच्छा लगता है खुद को एक कॉमिक में देखकर. Really cool, man. I mean, this is an action film and it's a full-on dhamakedar fun film. So I think making a comic for this kind of a film is a perfect connect. And to have a character like R. Rajkumar and to be punching people with that animation in there is a very, very cool feeling. So really nice. ऐसे है और फिर अपना सवाल पूछिए. ये साड़ी का किस्सा आपको शाहिद कपूर बताएंगे. ये आप बताइए ना, मैं क्या बताऊं.
जैसे ये कल अहमदाबाद गए थे हमारी फिल्म की प्रमोशन के लिए और उन्होंने वहाँ से ये साड़ी खरीदी है बिकॉज ही थिंक्स आई लुक वेरी नाइस इन अ साड़ी सो ही No, you don't look very nice in a sari. You look the best in a sari. थैंक यू सो दैट्स व्हाई ही हैज गॉट दिस फॉर मी फ्रॉम अहमदाबाद मैंने अब तक तो नहीं सोचा बट हाँ इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर सो आई विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग वो ऑलरेडी मुझे दे चुकी हैं उनको जो देना था वो अपना लक दे चुकी हैं मुझे बहुत लकी हैं सोनाक्षी मैं इनके साथ जब कैरम भी खेलता था ना तो ये इधर मारती थी ऐसे और टक 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 करके किसी और पॉकेट में गोटी चली जाती थी तो ये जेन्युइनली बहुत लकी हैं उस सब का तो नहीं पता बट सोनाक्षी के होने की वजह से इस फिल्म के अंदर जो भी आपको केमिस्ट्री दिख रही है जो आपको डांस दिख रहा है जो मस्ती दिख रही है उसमें सोनाक्षी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और लकी तो वो है नहीं बट आप लकी डेफिनेटली हैं आई थिंक शी हैज अ सर्टेन एनर्जी एंड अ सर्टेन पॉजिटिविटी जिसको लोग लक भी कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं बट वो बहुत पॉजिटिविटी लाती हैं और वो आई थिंक प्रोमोज में दिख रहा है I think I've managed very well and you know giving both the films the amount of time that each one required from me so I think I've managed pretty well and today the film releases so I'm free of those responsibilities and now I can you know easily promote this film फिल्म का आउटकम क्या होगा वो फ्राइडे के बाद ही डिसाइड होता है उसको none of us can do anything about that if anything to some extent the director and the producer can contribute to it as an actor I can only go out there and try and do what Prabhu sir as a director expected from me so my focus is on being able to achieve उनका vision जो था उनके thoughts जो थे उनको achieve करना and to go out there and make a film which is highly entertaining beyond that what will happen यार I don't think about it हर रिलीज से पहले आप लोगों ने जो 100 करोड़ क्लब जो कॉइन किया है ये जब वर्ड नहीं होता था तब भी उतनी नर्वसनेस होती थी रिलीज से पहले बिकॉज आपकी 1 साल की मेहनत है और लोग उसको जज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली देयर इज नर्वसनेस बट दैट वाज ऑलवेज बीन देयर फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म टू दिस फिल्म आई हैव ऑलवेज फेल्ट नर्वस आई एम एक्सपेक्टिंग the film to be liked by the audience. I'm hoping that people love R. Rajkumar as a character. I'm hoping people like me and Sonakshi together. I'm hoping people like me in the world of Prabhu Deva in the spaces of action, in the spaces of dance, in the way that he's made me play the character. So of course, I'm hoping for all these things. मैं comfortable अब I mean, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें मैं अनकंफर्टेबल हूँ ये तो आपको देखकर बताना पड़ेगा ना जब आप दोनों फिल्म देखेंगे तब ऑडियंस ही जज करेगी केमिस्ट्री एंड आई थिंक इस फिल्म में बहुत अप्रिशिएट हुई है क्योंकि द स्पेस द फिल्म इज इन द डांसेस द सॉन्ग्स द रोमांस इस फिल्म में काफी हद तक अप्रिशिएट हुई है तो आई थिंक द ऑडियंस विल हैव टू डिसाइड I want to play the Joker. It's the most evil character and unapologetically evil. And I love the Joker as a character. I think it's amazing. Can I tell him that you're saying? See what he's saying. He'll say, I'll play Superwoman in a sari. And your dialogues will only be galis like what you do for No. Rajkumar. Hey, loafer. What all say? Say all that you say. Shh. एक बार हो जाए, है ना? काफी दिन से तूने गाली नहीं सुनी ना? चोर है तू, लुक्खा है तू, हद से बड़ा टुच्चा है तू. ऑब्जर्व किया तूने? इस तरफ देख के नहीं बोला उन्होंने, आपको देख के बोला. उनको ही तो सुननी थी. जी, I am going bald for the role. Yes, that's true. Amazing. He's a phenomenal director. उन्होंने मुझे कमीने फिल्म दी थी जो मेरे I think मेरे लाइफ का सबसे appreciated role रहा है अब तक. So it's great working with him again and it's been a lot of fun. हाँ, obviously मुझे लगा justified है और जब मैंने script पढ़ी तो मुझे लगा it will be very interesting. And I've always tried to do something shocking whenever I've worked with Vishal Bhardwaj. हमेशा कोशिश की है to do something different. So yes. All right, on a signing off note, Sonakshi ji, how was your experience at this store? आपको कैसे लगा यहाँ पर आकर? Photo op.
रेडियो का सामने अरे बीच में हाँ बीच में हाँ बराबर दो इस एल्बम का जन्म एक्चुअली मैं सच्ची स्टोरी बताना चाहता हूँ और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने द राइट स्टोरी आई मीन किस तरह जन्म हुआ इस एल्बम का आई वॉज इन जयपुर and one day Sharib had called me and he was singing something on phone and he was asking me कि कैसा है ये riff म्यूजिकली हम लोग जब हमारे किसी गाने में कुछ म्यूजिकल पार्ट होता है जो बार बार बजता है ना उसे हम रिफ कहते हैं then he was singing a riff then I told him that it's amazing बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ये क्या है then he says कि ये गाना है इस गाने का नाम मेरे जहन में है इस गाने का नाम फ्रेंच किस है तो ही कॉल्ड मी आई वाज इन जयपुर फिर मैं जयपुर से वापस बॉम्बे आया फिर ये जो आइडिया है इसको आगे लेके गए हमारे जो लिरिक्स राइटर हैं कुमार साहब उनका बहुत योगदान रहा है इस गाने को पूरा कंप्लीट करने में जो अल्फाजों से सजाया है जिस अल्फाजों से सजाया उन्होंने गाने को फ्रेंच किस कर ले यार तेनू बड़ा मिस कर दे तो वो एक जो उनका अंदाज़ है उसको बहुत तरीके से और बहुत टीम वर्क होता है कुछ उनकी मेहनत कुछ हमारी मेहनत उससे मिलके गाना अच्छा बनता है तो ये इस तरह से गाने की उपज हुई और दिमाग में ये आइडिया आया कि फ्रेंच किस एल्बम का ही नाम रख दें क्योंकि दैट वाज द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर अब नहीं ऐसा कुछ डिसाइडेड एक्चुअली गाना बन गया था बट बिकॉज वी हैव अ वेरी 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 गुड आई मीन वेरी गुड मतलब मैं क्या अल्फाज यूज करूं मतलब रिश्ते हैं हमारे ऐसे बने प्यार है उनका आफ्टर यमला पगला दीवाना 2 के म्यूजिक के बाद सनी सर धर्म सर दे ऑल आर वेरी यू नो बीइंग वेरी लवली विद अस और बहुत सपोर्ट बहुत प्यार उन्होंने दिया शुरू से ही तो फिर ऐसे ही हमारे जहन में ये था कि अगर सनी सर आएँ और हमारा एल्बम रिवील करें तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा और वंस अगेन मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं सनी सर का कि उन्होंने अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हैं आप पूरे बॉम्बे शहर में ये इन सारे होर्डिंग्स के पीछे ये एक ही आदमी है कि जो जिसको इनकी इच्छा करती है चिपका देते हैं 40x40 तो ये इनका प्यार है इनका बहुत बहुत शुक्रिया ब्राइट का भी बड़ा सपोर्ट है हमारे साथ सो थैंक यू वेरी मच वीडियोस हम लोगों ने किए हैं जिसमें से 2 हम लोगों ने इंग्लैंड में शूट किए हैं और एक दुबई में किया है सो टुडे व्हिच वी गोइंग टू प्ले द फ्रेंच किस टाइटल ट्रैक दिस वन वी शॉट इन लंडन -10-15 टेम्परेचर में हम लोगों ने गाना शूट किया है एक टी शर्ट पहन के so that was good very good experience and very good lovely shooting in London देखिए 5 गाने इस एल्बम में जैसे कि शारिब ने पहले बताया था कि जब हम फिल्म का म्यूजिक करते हैं तो वी ऑलवेज हैव बाउंड्रीज वी ऑलवेज हैव सिचुएशंस बट इन आवर नॉन फिल्म एल्बम आवर एल्बम देयर इज नो सिचुएशन देयर इज नो बाउंड्रीज तो हम लोगों ने वो करके एक अपना पूरा फ्रीडम रखते हुए हमने 5 अलग अलग किस्म के अलग अलग गाने बनाए हैं देयर इज वन R&B देयर इज वन हिप हॉप देयर इज वन सूफी देयर इज वन I mean, there's so many songs. I mean, there's one romantic track. There's one song जिसमें हम लोगों ने कव्वाली स्टाइल ऑफ कव्वाली को हिप हॉप के साथ मर्ज किया. Like we both belongs to a Sufi family. My father उस्ताद अकरम साबरी, he was कव्वाल. तो हम लोगों का बैकग्राउंड वही है. हम लोग सूफियाना बैकग्राउंड से आते हैं. So one song we did as in कव्वाली hip hop. So I'm sure that people gonna love that song for sure. I really want to say one thing. That कि अभी लास्ट 18th of August को I mean we lost our father तो हमारे उस्ताद वही हैं और उनकी शिक्षा उनकी तालीम और उनकी दुआओं की वजह से हम जहाँ भी हैं आज हम उन्हीं की बदौलत हैं तो I mean उनका ब्लेसिंग्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें. ये हमारा पहला नॉन फिल्म एल्बम है और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि मुझे बड़ा पसंद है जो कि मैंने गाया है कॉल साजन. एक गाना है रोमांटिक ट्रैक कॉल अल्लाह अल्लाह विच शारिब हैज संग. देयर इज वन मोर सॉन्ग कॉल देयर इज अ फ्रेंच किस टाइटल ट्रैक एंड देयर इज वन मोर सॉन्ग सोनिए. इट्स अ पंजाबी सॉन्ग अगेन एंड वी शॉटेड दिस वन इन दुबई. सो जो आपका सवाल था कि इस एल्बम में पंजाबियत ज़्यादा तो नहीं होगी सनी सर आ रहे लॉन्च करने के लिए. एक्चुअली हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो एक जो नॉर्थ का जो फील है पंजाबी और बेसिकली पंजाब का तो वो आजकल जितने भी फिल्मों में भी गाने बन रहे देखिए आप उसमें कहीं ना कहीं पंजाबियत आई जाती है. तो वो एक तरह से कीजिए कि आजकल चल रहा है वो ट्रेंड लोगों को उस तरह के कैच पसंद आ रहे हैं उस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं गानों में.
So that's what we did. Actually, full album or not full songs are Punjabi. They're mix of English, Punjabi, Hindi, Avdi also we have done. So it's a mix of all the flavor in our country. मतलब हर किसी की जर्नी बहुत आसान तो नहीं होती है, कठिनाइयाँ मुश्किल सबके साथ होती हैं लाइफ में, और हर इंसान को मुश्किलों का सामना करने के बाद ही सक्सेस देखने मिलती है. तो ऑफ कोर्स हमारे साथ बेसिकली हम दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि वी जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी. We have just started. This is our first music album. We have done 10-12 films as a music director. So this is just a beginning for our fans, for our well-wishers जो हमारा म्यूजिक पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं. योगेश भाई के लिए जितना भी बोला जाए कम है. जितने भी सुपरस्टार्स, जितने भी चमकते सितारे आप बम्बई की सड़कों पे होर्डिंग्स में देखते हैं, वो योगेश जी की बदौलत ही है. तो शारिक तोशी का भी बहुत शारिक तोशी की तरफ से धन्यवाद. और तोशी भाई बात करेंगे. हाँ जी, वन मोर टाइम. क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ आप जब कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा या बड़ा कुछ करते हैं, तो उसके लिए आपके साथ रहने वाले आपके भाई कहें या फ्रेंड्स कहें या दोस्त कहें, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. और जो दोस्त भाई सपोर्ट दिखाते हैं वो सच में भाई और दोस्त कराने के लायक होते हैं. तो योगेश लखानी जी ने वो सपोर्ट और प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया. वंस अगेन ये दोनों की तरफ से एक छोटा सा नजराना आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों के हाथ में कैमरा है, बहुत बिजी है, मगर ताली बजा दीजिए. रिवील करेंगे हम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. आप लोग यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया. तो डेफिनेटली वो सब कुछ होगा. एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि जो मैं कभी नहीं भूल सकता. 1 साल वर्किंग ऑन म्यूजिक विद सनी सर. तो बस एक छोटी सी बात के मैं चाहूँगा कि कुछ 2 अल्फाज हमारे दोनों के लिए आशीर्वाद स्वरूप या ब्लेसिंग बतौर सनी सर कहें. सो प्लीज 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 एवरीबॉडी साइलेंट. आप लोगों के साथ संबंध बना मेरी फिल्म से यमला पगला से, उसमें मेरे हिसाब से जितने भी गाने थे सब बहुत ही अच्छे थे. और उसी वजह से मैं आप लोगों के पास हूँ इस वक्त, क्योंकि आई रियली लव योर म्यूजिक एंड आई एम श्योर दिस म्यूजिक राइट्स फॉर द फ्रेंच किस विल बी. एंड बस ढेर सारा और म्यूजिक निकालते रहिए. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. आराम से आप कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. Come down.
चाहे कोई मुझे जंगली कहे एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें ड्रामा भी है, कुछ बहुत हल्के हल्के लाइट मोमेंट्स हैं, अच्छे गाने हैं, अच्छे कलाकार हैं, नए लोग हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड इट्स एन एंटरटेनमेंट फिल्म। फैमिलीज़ को पसंद आएगी, क्लीन है, कुछ डबल मीनिंग, कुछ वल्गर, कुछ छिचोरापन, कुछ गंदगी, कुछ भी नहीं है। ये फिल्म ऐसी है कि मैं अपने 12 साल की बेटी, 10 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को भी दिखा सकता हूँ, साथ में अपनी माँ के। तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं हुई कि यार ये सीन आ गया, अरे यार यहाँ तो ये हो रहा है, मम्मी को कैसा लगा या डैडी को कैसा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स आउट एंड आउट क्लीन फिल्म, इट्स अ फन फिल्म and it's a film that everybody can go and watch and enjoy with their friends and their families. इस फिल्म में भी हर कैरेक्टर जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा जंगलीपना रहता है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपके ऊपर होता है। तो इसमें हीरो भी है, वो भी थोड़ा सा जंगली है, हीरोइन भी थोड़ी सी जंगली है, विलन भी थोड़ा सा जंगली है, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जंगली आपको नज़र आएगा, गानों में भी आएगा। हमारी जो फिल्म है वो है प्रोडक्शन नंबर 103। सो ऐसी कंपनी जो लेजेंडरी है, ऐसी कंपनी जो एक लेगेसी है, जब ये दोबारा आती है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि उस टाइम कैसा सिनेमा होता था, उस टाइम कैसे लोग थे और इन्होंने कौन कौन लोगों को इंडस्ट्री में लाया है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है बॉम्बे टॉकीज़ के कंधों पर आज की तारीख में कि रीलॉन्च करना और आगे इस लेगेसी को लेके बढ़ना। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कई सालों से डिमांड थी। हम लोग के जो प्रशंसक हैं, ऑडियंस जो भी थे, जो फैन, सब उनको सपनों पूरा कर रहे हैं और साथ में कुछ जैसे पहले हमने इंडियन सिनेमा को नई दिशा दी, वापस एक नई दिशा देने के लिए हम आ रहे हैं। पहला कारण है कि बॉम्बे टॉकीज ने जो 20 साल में जो काम कर दिया अपने आप में माइलस्टोन है। 100 फिल्में बनाना और कम से कम 280 से ज़्यादा लोगों को डेवलप करना, वो अपने आप में मैं नहीं समझता इतना आज तक किसी और ने काम किया। पूरे एशिया में का जो रिकॉर्ड हमने निकाला, हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। और हम लोग के सामने कोई मकसद नहीं था। हमारे लोग जो काम करने वाले लोग तो इस्टेब्लिश हो गए, चाहे दिलीप साहब हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे देवानंद हो, चाहे लता मंगेशकर हो, कमाल अमरोही हो, ख्वाजा अहमद अब्बास हो, चाहे कवि प्रदीप हो, कितना किशोर कुमार हो, अशोक कुमार, देवका रानी, नलिनी जयवंत, कामिनी कौशल, इतना महमूद साहब, इतनी हिस्ट्री हम लोग की पड़ी थी। लोग काम कर ही रहे थे, उनको हम लोग अपना उद्देश्य पूरा कर चुके थे। बॉम्बे टॉकीज जब पहला काम शुरू किया, उस ज़माने में कोई अच्छे परिवार के लोग काम करने को तैयार नहीं होते थे। तो उस सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग इन भारतीय सिनेमा में भारतीय दर्शकों के सामने इस सिनेमा के प्रति सम्मान पैदा करें, जो हमने किया। पहले देवका दादी, मतलब देवका रानी जो हमारी हीरोइन थी प्लस दादा की बेहद करीबी थी, तो वो पहले महिला हैं जो भारतीय सिनेमा में जो अच्छे परिवार से आई। टैगोर साहब की बहन की लड़की थी वो। तो हमने वो जो शुरुआत किया, अपना मकाम हासिल कर लिया। हमारे लिए कोई बचा नहीं था, इसलिए कंपनी को हमने प्रेम से, मोहब्बत से टॉप पे रहते हुए बंद किया हम लोगों ने। टाइटल से पता लगता है कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये अपने आप में संपूर्ण है। और ये टाइटल भी सारा आंटी का है। और पहले हमने टाइटल सोचा जंगली, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, चाहे कोई मुझे जंगली कहे तो वो करेंगे। तो टाइटल भी हमने उनके हिसाब से रखा। ये फिल्म भी मेरे ख्याल से शायद कहा जाए तो उन्हें ही समर्पित है। First of all, I'm very, very honored. I mean, it's a dream come true. For me, I think एक film करना, acting करना was my dream. But then getting an opportunity with Bombay Talkies, जिन्होंने मधुबाला जी को लॉन्च किया था, any actress के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी. And I'm very honored, I'm obliged, I'm so grateful to God कि I was the one who got, I feel like God's chosen one. I'm very lucky. सबसे बड़ा लेसन जो मैंने यहाँ सीखा है वो है पंक्चुअलिटी, आई थिंक. एंड नासिर सर, आई मीन ही इज़ समबडी जो कि एक परफेक्शनिस्ट हैं, जो कि बहुत प्यार से समझाते हैं. सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऑफकोर्स डांट पड़ती है, बट देन इट्स फॉर माई बेटरमेंट. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. आई लर्न कैमरा एंगल्स. मुझे पता चला कि मैं आई थिंक एक्टिंग क्या होती है वो मुझे नासिर सर ने ही सिखाया है. आई हैव डन एन एक्टिंग कोर्स, बट देन जो मैंने यहाँ सीखा, इट्स आई हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर. सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम लर्निंग एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हियर. बहुत बड़ा जंगलीपन है आई थिंक मेरे दिल में. आई थिंक चाहे कोई मुझे जंगली कहे इज़ अ वेरी कैची टाइटल. और जो गाना था
वो हम सब ने सुना है और मैं तो बड़ी हुई हूँ, मेरे डैड का फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी बिग जंगली इन मी, नॉट ओनली इन मी, आई थिंक एवरीबॉडी हियर. एंड हम सब हमारे अंदर का जंगली रोज़ एक्सप्लोर करते हैं ऑन दिस शूट बिकॉज वी आर हैविंग अ पार्टी. ये काम से ज़्यादा एक पार्टी के जैसा लगता है मुझे. सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ जंगली पान इन्वॉल्व्ड. अब इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतना खुशकिस्मती है इस बात की कि इतना बड़ा बैनर जिसने इंडस्ट्री को खड़ा किया, वो उसकी जिसे बाहर लिखा है बोर्ड पे कि पिलर ऑफ द इंडस्ट्री, तो वाकई ये पिलर ऑफ द इंडस्ट्री रहा है ये बैनर, जिसने 102 प्रोडक्शंस बनाए हैं और 103वां प्रोडक्शन ये है. लेकिन ये एक बहुत साल के गैप के बाद आ रहा है. उसका हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक मौका है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो ठीक से निभ जाए, ताकि जो नाम बॉम्बे टॉकीज़ का हमारी इंडस्ट्री में या पूरे संसार में हुआ है वो ऐसा कैसे ही वापस लोग याद करें कि हाँ भाई ये बैनर रिवाइव किया है उनके बाद की जनरेशन के लोगों ने. और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि इसमें मुझे काम करने का मौका मिला. चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मैं एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ एंड मेरे रोल का नाम है अलकेश. बहुत कम बात करता है लेकिन हाथ उसके बहुत ज़्यादा बात करते हैं. इस रोल के लिए वैसे मेरा नाम है मोहसिन खान एंड मुझे प्यार करेगा पूरा हिंदुस्तान. आ गया यार रिदम में. पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू नासिर खान जिन्होंने मुझे कास्ट किया है. नासिर भाई मुझे पहले से ही जानते हैं, पर उन्होंने जब मधुबाला सीरियल में मेरी एक्टिंग देखी थी तब उन्हें पसंद आई थी मेरी एक्टिंग. उसमें मैं पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था एज अ कॉप. और फिर उसके बाद मुहूर्त के दिन जब मैं यहाँ पे सेट पे आया था तब मोसेस मास्टर मोसेस कौशल मोसेस जो एक्शन कर रहा है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक्शन कर सकते हो. सो आई बीन इनटू किक बॉक्सिंग, पर ये अलग तरीके की फ़ाइट है तो वहाँ पे फ़ाइट करके मैंने दिखा के मुहूर्त के दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था. अलकेश बहुत कम बात करता है, पंचेस मारता है, फाइट करता है. सो बहुत ज़्यादा एक्शन है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये WWF की रिंग है. यहाँ पे रियलिस्टिक फ़ाइट है और बहुत मज़ा आ रहा है लड़ने में. विलन और हीरो की जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए. हीरो और हीरोइन की नहीं होगी एक बार चल जाएगा, पर विलन और हीरो की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि मैं ये वाला पंच मार रहा हूँ तो उन्हें अगर ये वाला पंच मार रहा हूँ ऐसे हटना है, ऐसे हट जाएंगे. या तो उन्होंने मुझ पर पंच थ्रू किया. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी एक्शन होगा. खास करके इस पर बैलेंस करना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे आप ये जाली देख रहे हैं, उन्होंने भी ड्यूप नहीं यूज़ किया, मैंने भी ड्यूप नहीं यूज़ किया और इतनी बढ़िया एक्शन हो रही है. लिटरली 2 दिन में हमने मेजर चंक इंटरवल के पहले वाला एक्शन ख़त्म कर दिया है और बड़े. सो अभय जी इज़ मेड मी वेरी कंफर्टेबल और इतने डाउन टू अर्थ हैं. पहले तो शुक्रिया अदा इनफैक्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस फिल्म में. और ना प्रोड्यूसर का एक एटीट्यूड या टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते. ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, ही इज़ सच अ कूल गाय और बहुत मज़ा आ रहा है एक्शन करते हुए भी. सो एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है हमारी, वरना तो इतने सीन्स नहीं उड़ पाते.
Now, obviously, the photo is inside. The commercials are different. That's always something I'm very, very good at. काफ़ी शौकीन हूँ यार, सच बोलूँ तो जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं मुझे बहुत नींद आती है। आई एम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट पासिंग आउट। तो फिर मेरा ऑर्डर जाता है कोल्ड कॉफ़ी और डबल शॉट ऑफ एस्प्रेसो। अफसोस की बात यह है कि कभी मुझे ऑफ़र किया नहीं गया, लेकिन मुझसे सवाल बहुत किया करते थे कि भाई विल यू मेक मी कॉफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा था। आज का कॉन्टेस्ट ज़्यादातर फेसबुक का कॉन्टेस्ट था। फेसबुक पे वो कॉम्पिटिशन कर रहे थे कि अगर आप इमरान से मिलते हैं व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी कॉन्वर्सेशन विल यू हैव विद हिम, और विनर्स को एक गोल्ड कॉफ़ी बीन मिल रहा था। तो आज मैं कॉफ़ी कॉन्टेस्ट विनर से मिला था। अपेरेंटली ऐसे कोई सिक्योरिटी इश्यूज थे, उस वजह से मुझे कॉफ़ी बीन्स देखने को नहीं मिले। आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। आज मैं 10 कॉन्टेस्ट विनर से मिला था और मैंने कहा कि हाँ भाई आपके कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे। सबका एक ही सवाल था, भाई आप मेरी बहन से बात करेंगे, आप मेरी दीदी से बात करेंगे, आप मेरे पापा से बात करेंगे। तो 10 लोग आए थे और सबका एक ही रिक्वेस्ट था कि मैं फ़ोन पर किसी और से बात करूँ। आप इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत साल हो गए। आजकल तो बाहर जा नहीं सकते कैफेज़ वगैरह में, इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। लेकिन हाँ, जब हम डेट कर रहे थे दैट वाज द प्लेस टू हैंग आउट यार। हर कोई कॉफ़ी शॉप में ही जाता था। और नाइट शिफ्ट्स के वक्त जब मुझे नींद आती है। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था मैं बड़ा अच्छा फेटा हुआ कॉफ़ी बनाता था और ये मेरी स्पेशलिटी थी। और गर्ल्स हॉस्टल से हाँ फेटा हुआ ऐसे फटफट ऐसे करते हैं ना फोम वाला। तो गर्ल्स हॉस्टल से सभी लड़कियां आती थी और मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि इमरान विल यू मेक कॉफ़ी दैट स्पेशल कॉफ़ी फॉर मी। अगेन आई थिंक दैट दे वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। तो कम इस साल तो मैंने 3 फिल्में की थी जो विच इज़ अ लॉट फॉर मी। तो उतना काम मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस साल में 1-2 फिल्में करना चाहता हूँ। मेरी अगली फिल्म होगी भावेश जोशी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं विक्रमादित्य मोटवानी। अब हमारा प्री प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है। हमारा इरादा ये है कि हम फरवरी-मार्च में शूटिंग शुरू करें। दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ। तो इस वक्त वही एक फिल्म है जिस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। कोई पक्की बात तो हुई नहीं है, लेकिन मैं बड़े आराम से काम करना चाहता हूँ। इस साल मैंने बैक टू बैक लगातार 3 फिल्में की हैं और ब्रीदिंग रूम नहीं मिला। डायरेक्टली जैसी एक फिल्म ख़त्म हुई दूसरी फिल्म शुरू हो गई। और मुझे लगता है कि पर्सनली मैं ऐसा काम करना पसंद नहीं करता हूँ। बनना चाहता था ज़रूर। मैं फिल्म स्कूल गया था और मेरी पढ़ाई उसी की थी। मैंने स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन की पढ़ाई की थी। तो मेरी ट्रेनिंग जो थी एज अ डायरेक्टर थी। पिछले काफ़ी सालों से हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जो हम दोनों को पसंद आए, बट स्टिल नाउ वी नॉट फाउंड द करेक्ट स्क्रिप्ट। और आप तो जानती हैं मामू कितने चूजी हैं, मैं भी उनसे कोई कम नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ अस हैव गिवन अ लॉट ऑफ पीपल स्लीपलेस नाइट्स कि भाई कैसी फिल्म होगी, किस तरह का स्क्रिप्ट होगा। वी नॉट फाउंड वन विच बोथ ऑफ अस लाइक। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो फिल्म एक क्लासिक है और जब तक लोग उस फिल्म को याद रखेंगे आपका रीमेक नहीं चल सकता है। पीपल विल ऑलवेज कंपेयर और उनको हमेशा लगेगा कि ओरिजिनल बेहतर थी। वो गॉड नहीं, मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकता जो बेन एफ्लेक करते हैं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड स्टार एंड ऑल। उतना काम मुझसे होगा नहीं। आजकल मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। ज़रूर एक दिन प्रोड्यूसर भी बनूंगा, डायरेक्टर भी बनूंगा, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। ब्रू गोल्ड का एक कॉन्टेस्ट था। आई थिंक उन्होंने शायद फेसबुक पर पूछा कि ब्रू गोल्ड एज गुड एज गोल्ड क्यों है, और सही जवाब देने वालों को शायद 10 विनर्स थे जो मैं आज मिला हूँ। तो जिन्होंने सही जवाब दिया दे वर द कॉन्टेस्ट विनर्स, उनको एक गोल्ड कॉफ़ी भी मिला और मुझसे मिलने का मौका। देखिए मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि जब मैं खुद टीवी देखता हूँ और कोई ऐड टीवी पर आए, मैं हमेशा चैनल म्यूट कर देता हूँ, चैनल बदल देना। अरे यार ये बहुत पकावा ऐड है, बहुत इरिटेटिंग है। एंड आई एम वेरी स्केर्ड कि भाई कहीं लोग मेरी शक्ल देख के ये ना करें।
तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि ब्रांड के एड्स कैसे होंगे, मज़ेदार होंगे, चाहे वो फनी हो या इमोशनल हो, और में कोई ट्विस्ट हो एट द एंड ऑफ द एड, जिसे लोग कहें कि हाँ भाई बहुत ही मज़ेदार ऐड थी, यू शुड टेल पीपल कि भाई ये ऐड देखो। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्रिएटिव्स कैसे होंगे। थैंक यू। For the evening, and we also have a very special guest with us of Reliance Infrastructure, Mr. R.R. Mehta. It was a pleasure to see you. I now request you to kindly take your seats and get ready for the judging. वॉशिंग मशीन के होने पर भी हाथ से कपड़े धोने पड़ते। अरे डब्लू देख, ये औरत तो वॉशिंग मशीन से पानी निकाल के कपड़े धो रही है। आजकल तो हमारे साथ कोई नहीं खेलता। फ्रॉक, पैंट, ना टी-शर्ट, लाइफ एकदम कलरलेस हो गया है। सर जी, हम लोग तो सचमुच में फ्यूचर में आ गए। लगता तो ऐसा ही है। चलो कोई और घर में चलते हैं। वॉशिंग मशीन के जगह पे हम तो सिर्फ पानी का टब भरकर रह गए। अरे डब्लू, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। सर्दी वो तो कपड़े रख रही है। ध्यान से देखो, वो कपड़े फ्रिज के अंदर रख रही है। हाँ सर्दी, पर क्यों? मेरे ख्याल से ये कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। ये फ्रिज कपड़ों को ठंडा करती होगी। पुराने को तो संभाल नहीं पाए, नए टेक्नोलॉजी की बात करने लग गए। हे भगवान, waste any more energy. We are not going to waste any more energy. Save it as much as you can. Save it as much as you can for the next generation. Yes, we are the young energy savers. Thank you. Love you. If you could share some words, please. Good evening, children, ladies and gentlemen, and all the parents here. Thank you all for your support, and all the teachers as well. I'm sure you all have put in a lot of hard work. But the stars for this evening were all the children. Absolutely, you all were fantastic, all of you. I must say, for Sachin ji and me here, that it was very, very difficult to choose amongst all of you all. But the results are based on the different categories, as you all should know. The idea, the story, the concept, music, even the performances. So for us, what was very necessary was the issues that you all touched. The music, the use of props, obviously the performances, the concept, and also the direction. So all the judgment that has been based on that. And we've been absolutely fair, but again to tell you it was very difficult because all of you all were so cute and fantastic, and I want you to come and pull a few people's cheeks like that one there. You come here, I just want to pull your cheeks, please, just once. I really, ये गाल मुझे मेरे ठाकुर नहीं, वो आपके गाल नहीं खींचेंगे। हाँ, मेरा हो गया, ये इसके गाल खींचने थे, और वो जो फर्स्ट एक्ट था एक, और वो चप्पू जो बोल रहा था अरे पॉकेट मनी, उसके भी गाल मुझे खींचने, ये भी गाल खींचने जा रहा है, ये और चीज हो जाता है। आपने बोला ना फर्स्ट पर्सन हु केम, आई थॉट ओह वाओ। आज के जितने भी बच्चे हैं, रवीना ने बिल्कुल सही कहा, सब स्टार्स जो हैं वो आज के बच्चे हैं, और इन बच्चों की तरफ से अगर ये चीज़ थॉट जो बड़ों तक पहुंचता है वो ज़्यादा जल्दी पहुंचता है, बल्कि बड़ों से छोटों तक पहुंचने में। और And we also thank the Rinfra team. Sorry, I'm little unwell, so मेरी pronunciation all difficult हो रही है. But I think it's a great effort, sir, that you all have put to bring this to schools. So a very big hand for the Rinfra team. Well, good evening to everybody. I must thank Sachin and Ravina for having spare time and come here.
Greater thanks to the kids who have participated in this and reached to this stage. Winning is just subjectivity. I think everybody has performed very well. I must say that the way all these skits have been presented clearly reflects that you can save energy, yet you can live your life happily. You don't have to compromise any part of your life in that. I think that was the great message which is coming out of it. You have cold water, you don't have to keep fridge open and waste energy, but yet you can enjoy the cold water. Here they are just okay with the cell phone. Ghost you. AECS 4. Receive the awards, I request their parents fantastic. Can we have a round of applause? Thank you and congratulations, Shantinagar High School, for that amazing performance. You can take a lead. I think it was a fabulously put up show, and I think Rinfra has done a great job क्योंकि एक स्कूल्स में मैसेज पहुंचाना, बच्चों के ज़रिए अपने पेरेंट्स में और घरों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो रिंफ्रा ने किया है. और आई थिंक जो आपने देखा, बच्चों का अपना कॉन्सेप्ट था, अपना टैलेंट था, अपना एक्स्ट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं यूज़ किए. जो भी उनका म्यूजिक था, देव डन इट विद देमसेल्व्स, यू नो, फिजिकली विद क्लैप्स एंड विद स्टॉम्पिंग एंड यूजिंग द स्टेज एज प्रॉप्स. तो आई थिंक बहुत ही क्रिएटिव था. तो एक बच्चों को यूज़ करके उनकी इंटेलिजेंस को टैप करना और एक क्रिएटिव फॉर्म में एक ये बहुत इंटरटेनिंग मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज एक इंटरटेनिंग फॉर्म में आगे बढ़ाना, आई थिंक वाज अ ग्रेट एफर्ट, अ ग्रेट यू नो फुल अचीवमेंट दैट हैज़ बीन पुट टुगेदर. तो उसके लिए मैं रिंफ्रा टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और जितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी, क्योंकि जैसे आप देख रहे थे कि जब वो जीते वो लोग इतने एंथुजियास्टिक थे एंड दे वर सो एक्साइटेड. सब बच्चे बहुत ही खुश थे, टीचर्स खुश थे. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव क्योंकि ये आगे और बहुत जाएगा. यू नो, इट्स नॉट कि इट्स गोना स्टॉप हियर एंड इट वाज बोरिंग करे. आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स गोना गो अहेड एंड इट्स बीन डन ब्यूटीफुल. वो तो खैर हमारे शायद किसी शो के विनर्स रहे हैं या पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, पर वो एक अपने आप में एक टैलेंट है. लेकिन जहाँ तक कि ये जो स्किट्स थे, जो स्कूल बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा किया है. एंड आप हम लोग के जो मार्किंग्स थे, दोज वर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, डायरेक्शन. बच्चों ने खुद डायरेक्ट किए ये प्लेस, खुद कॉन्सेप्ट सोचे. एंड आई थिंक एक जो विनर्स थे हम लोग को स्पेशली छू गए, सचिन जी को और मुझे, क्योंकि उन्होंने ऐसे इश्यूज टच किए जैसे कि किसानों की आत्महत्या, कि गांव में बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चलती है, पानी नहीं पहुंचता है, यू नो, जो दूसरी सुविधाएं फार्मर्स को पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं. तो इसके लिए क्योंकि हम लोग सिटी में रियलाइज़ नहीं करते, हम लोग वेस्ट करते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो छू गया हम लोग को. दूसरा इशू था जो हमारे फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात की कि आगे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, जो हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए हम किस तरीके का प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं जहाँ एनर्जी ही नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन और आगे वाली जनरेशन ने सब खत्म कर दिया है, वेस्ट कर दिया. तो आई थिंक दीज आर वेरी इंटेलिजेंट इशूज जो यूज हुए, जो छुए और वो हमारे दिल को भी छू गए.
बहुत सारे स्टेप्स जैसे कि मोस्टली यू नो स्पेशली आई थिंक गीजर्स एंड एसीज आर वन थिंग विच इज मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चों को भी सिखाया जाए कि यू नो यूज़ लूकवार्म वाटर, यूज़ नॉर्मल वाटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये हम लोग ने ही आदत दिला दी है कि एसी के बगैर सो नहीं सकते, गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकते। तो आई थिंक समवेयर लाइक माई चिल्ड्रन दे स्विम द ईयर थ्रू, चाहे दिसंबर की ठंडी हो या जुलाई की बारिश हो, वो स्विमिंग करते हैं क्योंकि दोनों कंपेटिटिव स्विमिंग करते हैं। तो उनको नॉर्मल पानी में और पूल में कूदने में उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि घर में ये नहीं कि गर्म पानी से ही नहाए, जो पानी की सुविधा होती है वो नहा लेते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू इम्बाइब इन आवर चिल्ड्रन, यू नो। तो बच्चों को वही आदत पड़ जाती है जो हम लोग सिखाएं। एज अ मदर दैट्स व्हाट आई ट्राई all the time. I think once you become a mother, once you become a housewife, once you see the bill and actually get heart attacks, अपने आप सब आ जाता है, बटन बंद करना आ जाता है। एंड आजकल आई मीन सर भी यहाँ बैठे हुए, मैं बताती रहूँगी, सब तो जानते ही अपने घरों में जो कभी 3000 का बिल था सडनली जंप होके 5000 का आ जाता है। तो ये कैसे हो गया यार? तो ये तो होता ही है जब मूड आता है। सर जी हम सब आप लोग के हाथ में, आप लोग बढ़ा देते हो जब मूड होता है। तो हम लोग तो करते रहते हैं सब बिजलियाँ बंद। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द बिल, बट आई थिंक बेसिकली फॉर आवर एनवायरमेंट, for our future generations, that we try to conserve the energies, whatever resources. I'm not only talking about electricity, I'm talking about petrol, I'm talking about fuel, I'm talking about consumption of basic energies which we need to leave for the future generations to come. For sure. Excuse me. Sir, आप यहाँ आ जाइए। जी, मेरा जो नज़रिया है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का, वो डेफिनेटली लक्ष्यपूर्वक है। यानी कि मैं बहुत लक्ष्यपूर्वक होता हूँ जब मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैं ठंडे पानी से नहाने वाला इंसान हूँ, मुझे गर्म पानी लगता नहीं है। और मुझे मज़ा आता है जब अप्रैल मई के सीज़न में जब मैं ठंडे पानी का टैप ऑन करता हूँ और गर्म पानी आता है, तो फिर मेरे पास एक क्वेश्चन हो जाता है कि मैं नहाऊँ कैसे। लेकिन एक बात मैं और बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि मैं पानी का इस्तेमाल भी जितना ज़रूरी होता है उतना ही करता हूँ। और हम ये नहीं भूल सकते कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिलती है उसका बेसिक सोर्स पानी है। तो अगर जड़ से इस सब चीज़ों को अगर बचाया जाए तो ऑटोमेटिकली उसका एक परिणाम जो है वो इन सब चीज़ों पे आएगा। मिसाल के तौर पे घर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितनी की उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि उतने ही बल्ब ज़्यादा होंगे, कमरे ज़्यादा होंगे, उतने ही बटन ज़्यादा होंगे, स्विचेस ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिक पे आप अगर जड़ तक अगर उसकी पहुँचे आप, तो ही आप ये सब कुछ बचा सकते हैं। सिर्फ एक बटन बंद करने से आप इलेक्ट्रिसिटी सेव अगर कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, या सिर्फ एसी को 24 तक रखने पे आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ करने के बाद ही बल्क में, एक बॉडी में हम ये चीज़ कर सकेंगे, और हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मेरी सलाह ये है कि आप अपने फोन्स और अपने आईपैड्स या आपके टैब्स जो हैं वो रात को बंद करके सोए, ताकि दूसरे दिन सुबह आपको उतनी ही बैटरी चार्ज करनी पड़े जितनी की खर्च हो चुकी है, ना कि सुबह तक वो पूरी डिस्चार्ज होके आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी चार्ज करने के लिए लगानी पड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज़ लोगों के पास नहीं पहुंचती। उनको लगता है फ़ोन है, शुरू रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, और जो कि हमारे लिए या हमारे अगली जनरेशन के लिए या उससे भी अगली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कदम रिलायंस ने उठाया है इस तरह का, जो मैं समझता हूँ बच्चों के थ्रू बड़ों को समझाने की जो बातें हैं, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर हमें कुछ सिखाने की कोशिश करें तो हम उसको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि हम एक बार तो कम से कम सुने वो क्या कहने की कोशिश करें। मैं बहुत सारी चीज़ें करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं फ़िलहाल टेलीविज़न तो कर ही रहा हूँ, मराठी फिल्म 2 शुरू हो रही हैं, उनमें से एक में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। एक म्यूज़िक एल्बम सिंगिंग का, उसका काम जारी है, और ये 2 चीज़ें होने के बाद अपनी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस करूँगा। और इस साल के आखिर तक या अगले साल के बिगिनिंग में मैं एक हिंदी फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूँ।
Thank you so much. Mehta wants to say something. In race and all that, and all of you would be welcome there. Venue, etc. They can give you all. Thank you.